नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि सिंधु जल संधि कई मायनों में एक अनोखा समझौता है। मैं दुनिया में किसी ऐसे समझौते के बारे में नहीं सोच सकता जहां किसी देश ने अपनी प्रमुख नदियों को बिना अधिकार बनाए दूसरे देश में बहने दिया हो, और इसलिए ये एक असाधारण समझौता था और जब हमने इसे स्थगित कर दिया तो इसके पीछे के इतिहास को याद करना जरूरी है। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सिंधु जल संधि पर सद्भावना और मैत्री की भावना से हस्ताक्षर किए गए थे। 1960 के बाद से हमारे बीच ना तो सद्भावना रही और ना ही मैत्री। और हमारे पास जो रहा वो है सिर्फ आतंकवाद। हमारे नागरिकों पर हमले हुए हैं, हमारे बीच युद्ध हुए हैं। The mission was reduced in strength. The military advisors were expelled. But the most important decision was to hold the Indus Waters Treaty in abeyance. Now, sir, there has been a lot of discussion in the House. Different members have expressed their opinion, as they should. But I think the importance of this step, it's necessary that the House understand and appreciate it. Because, sir, the Indus Waters Treaty in many ways is a very unique agreement. I cannot think of any agreement in the world where a country has allowed its major rivers to flow to the next country without having rights on that river. So it was an extraordinary agreement. And it's important when we have put it in abeyance to recall the history of this agreement. Now I know, sir, yesterday I heard some people are uncomfortable with history. They prefer that historical things are forgotten. Maybe it doesn't suit them, they only like to recall some things. So let me, for the benefit of the House, sir, mention 3 important observations which were made in Parliament on the issue of the Indus Waters Treaty. This was on November 30th, 1960. And the observations were made by the then Prime Minister on this subject. First, he says, I would like to know, is this House now to judge the quantum of supply of water or the quantum of money to be given? I confess I cannot judge it offhand. So the Prime Minister of India then is telling the Parliament, you cannot be a judge of the quantum of water. You should not be looking at how much money we are giving to Pakistan. That is not your business. Now say, because people are saying, you are paying money. We felt that in the circumstances, this is the right payment, and we purchased a settlement, if you like. We purchased peace, and it is good for both countries. 1960, sir, he says he purchased peace. We did not purchase peace, sir. It was a purchase of appeasement. Because within 1 year, the same Prime Minister accepted that with Pakistan there was no peace. Now, I hear some noises across the bench. I would be very happy to submit, sir, the Prime Minister's speech in the record of the Lok Sabha and to keep it on the table. Now, I mention this, sir, because please, sir, that very treaty. Please, that very treaty. आपका opportunity आएगा, आप बोले अपनी बात को, please. That very treaty mentions in the preamble that the Indus Waters Treaty is done in a spirit of goodwill and friendship. Sir, since 1960, we have had neither goodwill nor friendship. We've had terrorism, we've had attacks on our population, we've had wars. Such a treaty had to be dealt with, and this government dealt with it.
सभापति महोदय, मैं एक बार और दोहराना चाहता कि उनको फिक्र थी पाकिस्तानी पंजाब, उनको फिक्र जम्मू एंड कश्मीर के किसानों की नहीं थी, उनको फिक्र राजस्थान के किसानों की नहीं थी, उनको फिक्र हिमाचल पर नहीं थी। राइट टू स्पीक, नो प्लीज, और गेट योर अपॉर्चुनिटी टू स्पीक प्लीज। उनका कहना था कि संसद का ना हक है कि कितना पानी जाए ना कितना पैसा जाए, और सर जो वो कहते हैं कि हमने शांति, ये शांति की कीमत थी, नहीं सर, ये तुष्टीकरण की कीमत थी। अब सर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत सीएम युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2025 के शुभारंभ के लिए लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और सीएम योगी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। क्या कुछ कहा, सुन पाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब यहां पे एक सक्सेस स्टोरी सीएम युवा उद्यमी की उन 5 युवाओं ने आप सबके सामने प्रस्तुत किया। आपने देखा होगा ये 5 अलग अलग सेक्टर में सीएम युवा उद्यमी स्कीम से लाभान्वित हुए हैं। एक ऐसी स्कीम जो ब्याज मुक्त है, यानी ब्याज गवर्नमेंट देगी, जो गारंटी मुक्त है, यानी आपको गारंटी नहीं देनी है, आपके अभिभावक को नहीं देनी है, गारंटी भी राज्य सरकार देगी। और इन सब के साथ साथ जितनी आप पूंजी लेंगे उसका 10% मार्जिन मनी का भी लाभ राज्य सरकार आपको उपलब्ध करवा रही है। और इसी का परिणाम है कि 2,751 करोड़ रुपए अब तक हमने प्रदेश के उन 68,000 से अधिक युवाओं को उपलब्ध करवाया है, जो नए उद्यमी के रूप में उत्तर प्रदेश के विकास की इस यात्रा में सहभागी बनना चाहते हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश की उस अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदर्शन है जिसके लिए उत्तर प्रदेश को जाना जाना चाहिए था। मैं इन सब की उन सफल कहानी को देख रहा था, सुन रहा था, कितना उत्साह झलक रहा था उनके चेहरे पर। और ऐसे ही लाखों युवा उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, जो लोग अलग अलग सेक्टर में, अक्सर होता है हम लोग जानकारी न होने के नाते या तो हम नकल करने का प्रयास करते हैं। हमने देखा कोई व्यक्ति इस काम को कर रहा है तो हम भी वह काम करने लगते हैं, हमें जानकारी कुछ नहीं होती। हमारा युवा जब विश्वविद्यालयों में अध्ययन करता है तो विश्वविद्यालय अपने आप में एक टापू बन गए हैं। उनका देश और दुनिया से संबंध एक प्रकार से टूट सा जाता है। उन्हें न सेंट्रल गवर्नमेंट की न ही स्टेट गवर्नमेंट की किसी स्कीम के बारे में, किसी पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं होती। परिणाम क्या है, जब युवा वहां से निकलता है एक चौराहे पे खड़ा होकर असमंजस की स्थिति में होता है। वह मार्केट में देखता है ये स्कीम है, बिना ट्रेनिंग के जब वह लोन ले लेता है तो एक समय उस पर कर्जा बढ़ने लगता है, निराशा उसके सामने आती है। बिजनेस की जानकारी न होने के नाते उसके सामने मन आता है कि अब मैं इसमें पलायन कर जाऊं, लेकिन देर हो चुकी होती है।
ऐसे ही बहुत सारे युवा हैं जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन पूंजी नहीं है। इन सबकी समस्या का समाधान है सीएम युवा उद्यमी स्कीम और आज का ये सीएम युवा कॉन्क्लेव, जिसमें एक साथ सभी स्टेक होल्डर एक मंच पर आ गए हैं। आपको लोन मिल गया तो मशीनरी कहां मिलेगी? बाहर लगी हुई एग्जीबिशन उसमें आपका मार्गदर्शन कर रही है। बिजनेस ऑन व्हील किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि आप स्ट्रीट वेंडर की तरह एक जगह पे ही अपना ठेला लगा करके और बिजनेस करने के लिए आप भी निकलें। आपको स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा देगा वो आपके, और स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको भी कार्य करने में लीक से हट करके कुछ नयापन जब भी आप करेंगे गए हैं कि उन तक भी सीएम युवा उद्यमी स्कीम की जानकारी उनको मिले। केंद्र और राज्य सरकार क्या क्या कुछ कर रही है युवाओं के लिए, इसकी जानकारी मिल सके, वे युवाओं को दे सके और अधिक से अधिक युवा इससे लाभान्वित हो सके। आज उस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का और इसके बाद जब पैनल डिस्कशन होंगे इसके बाद के सत्रों में, तो विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा, उस क्षेत्र के विशेषज्ञों के द्वारा, बैंकर्स के द्वारा इसके बारे में आपके अपने अनुभव के लाभ के साथ साथ अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके द्वारा भी आपको यहां पर उन सुविधाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा जो आसानी से आपको एक जगह उपलब्ध हो सकती है। अक्सर होता क्या है, हमें जानकारी नहीं होती। जानकारी इस बात की नहीं होती कि सरकार की भी ये स्कीम है, और यही स्थिति थी 2017 के पहले। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना होगा कि उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत समृद्ध रहा है। पहले से ही सैकड़ों वर्षों से यहां पे सूक्ष्म लघु उद्यम बड़े पैमाने पे थे। कमोवेश हर एक जनपद में, हर एक कस्बे के आसपास उसका एक बहुत अच्छा क्लस्टर पहले से मौजूद था। लेकिन पिछली सरकार उसके महत्व को नहीं समझ पाई। समझती भी कैसे? समझने के लिए उस प्रकार की सोच चाहिए जिन लोगों की सोच केवल परिवार तक सीमित हो, जिन्होंने सत्ता हथियाने के लिए समाज के विभाजन को ही आधार बनाया हो। वे लोग देश की सबसे बड़ी आबादी के उन लाखों युवाओं के बारे में कैसे सोच सकते थे जिनका भविष्य इन सभी स्कीम के अंदर छुपा हुआ था। और यही कारण था कि वे लोग लगातार प्रदेश के एमएसएमई उद्यम को बंद करवाने के लिए उस प्रकार की साजिश का हिस्सा बन गए थे। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी, तो सरकार बनने के पूर्व उस समय भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र बना था, उस लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि सरकार आएगी तो सरकार प्रदेश के परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई स्कीम को लेकर के आएगी। एक लाइन का यह संकल्प पत्र था। सत्रह में मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो ये परंपरागत उद्यम में क्या करना है, जब पूरे प्रदेश भर का मैंने अध्ययन कराया तो मुझे लगा कि हर एक जनपद में कुछ न कुछ तो है, और इस दिशा में बड़े समृद्ध हैं, लेकिन ये सभी दम तोड़ रहा है। इसलिए सरकारों की अराजकता, गुंडागिर्दी, भ्रष्टाचार और बेईमानी ने
इस पूरे क्षेत्र को दम तोड़ने के लिए छोड़ दिया था, प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। लोग प्लान कर रहे थे, परिणाम था लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सरेराह गुंडागर्दी होती थी। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी क्या सुरक्षित रहेगी। कोई उद्यमी आता नहीं था, जो था भी वह प्लान करने के लिए मजबूर होता था। ये उत्तर प्रदेश की 2017 के पहले की तस्वीर है। महीनों महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। क्या कर्फ्यू के माहौल में कोई उद्यम चलाएगा, व्यवसाय करेगा, काम के लिए बाहर निकलेगा? ये उस समय की स्थिति थी। और जब हमने ओडीओपी लॉन्च की, सबसे पहले इसकी तारीफ की थी, इसकी सराहना की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि यही हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा था कि परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करेंगे। याद रखना, परंपरागत उद्यम का मतलब देश के अंदर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला कोई क्षेत्र है तो वह है एमएसएमई का क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ के आसपास किसान हैं और अकेले एमएसएमई क्षेत्र में 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। अब आप सोचो, खेती के लिए सरकार का प्रोत्साहन अगर बंद हो, ये 3 करोड़ लोग यानी 3 करोड़ परिवार सीधे सीधे इससे प्रभावित होते हैं। 3 करोड़ परिवार का मतलब 15 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं। अगर 1.25 करोड़ लोग जो एमएसएमई के साथ यूपी के अंदर जुड़े हुए हैं, इस उद्योग पर आंच आती है तो सीधे सीधे 5.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। और तब हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर इस स्कीम को लागू किया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। इसके लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किए। जनपद स्तर पर कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाए, हम लोगों ने इसमें ट्रेनिंग के कार्यक्रम बनाए, हम लोगों ने यहां पर उन लोगों के लिए पैकेजिंग की भी व्यवस्था की, एक्सपोर्ट के लिए भी उसको सुविधा उपलब्ध करवाई, एक्सपोर्ट सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई। आज वह देश की लोकप्रिय स्कीम बन गई। आज मैं कह सकता हूं कि हमारे मार्केट में 2017 के पहले कोई पर्व और त्योहार आता था तो चीन का सामान पटा रहता था, लोग उसी को गिफ्ट में देते थे। पैसा हमारा, सामान चीन का, मुनाफा चीन कमाता था। और फिर वही पैसा देश के अंदर अराजकता पैदा करने के लिए वह व्यक्ति उस मुनाफे के पैसे को, वहां से वो पैसा यहां पर वापस आ जाता था। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के बाजार में कोई पर्व और त्योहार के समय में सर्वाधिक सामान, सर्वाधिक कोई गिफ्ट बिकता है तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का बिकता है। और यहां का कारीगर, यहां का उद्यमी इससे लाभान्वित होता है, सर्वाधिक लाभ उससे होता है।
2018 में 24 जनवरी को हम लोगों ने इस स्कीम को प्रारंभ किया और अगले वर्ष हम लोगों ने अपने परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पी के सम्मान के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान प्रारंभ की थी। याद करिए, परंपरागत उद्यम के बाद अपने कारीगर और हस्तशिल्पी को, जो समाज अपने कारीगर और अपने हस्तशिल्पी को सम्मान नहीं दे सकता, क्या उसका भविष्य होगा? हम लोगों ने दिया, ट्रेनिंग के साथ उसे जोड़ा, टूल किट उपलब्ध करवाए। और मैंने तो एमएसएमई विभाग से कहा इस बारे में, जैसे सक्सेस स्टोरी यहां पे 5 युवाओं ने आपके सामने प्रस्तुत किया कि सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आए। पूंजी की कमी को दूर किया सीएम उद्यमी स्कीम ने, ट्रेनिंग की समस्या का समाधान किया सीएम उद्यमी स्कीम ने, आत्मनिर्भर युवा की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारा है सीएम युवा उद्यमी स्कीम ने। और सीएम युवा उद्यमी स्कीम हमारे युवाओं को केवल अब जॉब लेने तक नहीं बल्कि जॉब देने की सामर्थ्य प्रस्तुत करने का एक माध्यम भी बनाती है। और इन सभी कार्यक्रमों को जोड़ने के लिए हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम बनाई थी। तो मैंने यही बोला था, भाई हम जो गांव और हमारे पुराने कस्बों के आधार बने थे, वहां उस गांव में जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी, ग्राम स्वराज की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए उस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, हमारा गांव आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। क्या था ग्राम स्वराज का? वहां हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होता था, एक दूसरे पर सबके जीवन टिके हुए थे। गांव में नाव भी था, गांव में धोबी भी था, गांव में कुम्हार भी था, गांव में कारपेंटर बढ़ई भी था, गांव में राजमिस्त्री भी था, गांव में हर व्यक्ति हर उस फील्ड का एक्सपर्ट होता था, जिससे उस क्षेत्र की जानकारी होती थी। पैसा नहीं था, लेकिन राशन देकर के लोग एक दूसरे का संबल बनते थे, सहयोग करते थे। गांव आत्मनिर्भर होता था, हर घर में खुशहाली होती थी, गांव में सौहार्द और शांति का माहौल भी बना रहता था। समय के साथ हम लोग उसके जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाए, हमने उसके जीवन में परिवर्तन करने का कोई प्रयास नहीं किया, और इसलिए हम लोगों ने कहा कि बैंकों से जोड़ेंगे। लेकिन हम लोगों ने इसमें उनकी ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग के बाद उन्हें एक टूल किट उपलब्ध करवाया। आज वही पीएम विश्वकर्मा के रूप में देश के अंदर बहुत लोकप्रिय स्कीम बनी है। सीएम युवा उद्यमी स्कीम इन सभी को समेटे हुए एक साथ आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा अलग अलग क्षेत्र में इन युवाओं ने, किसी ने वुड कार्विंग में सीएम उद्यमी स्कीम का लाभ लिया है, किसी ने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में आज की मांग लाभ लिया है, और किसी ने फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में कैसे अच्छा काम कर सकता है उसके लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।